لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں۔ دھند کے باعث موٹر ویز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M2 M3 M11 حد نگاہ میں کمی کے باعث بند ہے۔ لاہور میں خشک سردی کا راج بھی برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آئندہ ہفتے تک بارش کا کوئی امکان نہیں۔ موسم کا احوال بتائیں گے نمائندہ لاہور نیوز زین علی۔ جی زین بتائیے۔ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں، جس کے باعث مختلف موٹر ویز کو جو ہے وہ ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے۔ موٹر وے M2 کو لاہور سے کوٹ مومن تک جو ہے وہ ٹریفک کے لیے بند کیا گیا، جبکہ موٹر وے M3 بھی اس وقت مکمل طور پر ٹریفک کے لیے جو ہے وہ بند کی گئی ہے۔ اگر بات کی جائے موٹر وے M4 کی، تو جس کو فیصل آباد سے پنڈی پٹیاں تک جو ہے وہ گزشتہ رات ٹریفک کے لیے بند کیا گیا تھا، جبکہ موٹر وے M5 کو شیر شاہ سے اچ شریف تک جو ہے وہ بند کیا گیا تھا۔ موٹر وے M11 لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی اس وقت مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند ہے۔ ان تمام موٹر ویز کو موٹر وے M3 M4 M5 اور M11 کو گزشتہ رات ٹریفک کے لیے بند کیا گیا تھا، جو تاحال ٹریفک کے لیے بند ہے، جبکہ اس حوالے سے موٹر وے پولیس کی جانب سے بھی ہدایت جو ہے وہ جاری کی گئی ہیں۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے پرہیز کرنے کی ہدایت جو ہے وہ کی گئی ہے، جبکہ دوران سفر جو ہے وہ گاڑیوں کی فوگ لائٹس کا استعمال کرنے کی ہدایت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اگر کچھ بات کر لی جائے شہر لاہور میں رہنے والے موسم کی، تو شہر لاہور میں جو ہے وہ خشک سردی کا راج جو ہے وہ برقرار ہے۔ اس وقت جو درجہ حرارت ہے وہ 60 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر لاہور میں کا درجہ حرارت کم از کم 60 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 18 ڈگری تک رہنے کا امکان ہے، جبکہ جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 91% تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ شہر لاہور کی فضائی آلودگی بھی اسی طریقے سے برقرار ہے، اور شہر لاہور آج دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر موجود ہے، جس کا اوسطاً ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 180 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جی زین، موسم کا احوال بتا رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ سموگ اور خشک سردی میں نمونیا سے ہلاکتوں اور کیسز میں اضافہ نہ رک سکا۔ پنجاب بھر میں نمونیا سے مزید 12 بچے چل بسے۔ 24 گھنٹوں کے دوران نمونیا کے 310 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ جان لیوا نمونیا کا خطرہ برقرار۔ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب میں نمونیا سے مزید 12 بچے دم توڑ گئے۔ لاہور میں نمونیا سے 3 بچے جاں بحق ہوئے۔ نمونیا سے جاں بحق بچوں کی مجموعی تعداد 226 تک پہنچ گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں نمونیا کے 310 کیس رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں نمونیا کے 165 نئے کیس سامنے آ گئے۔ لاہور میں نمونیا کے مجموعی کیسز کی تعداد 1970 تک جا پہنچی۔ پنجاب میں نمونیا کے مجموعی طور پر 9120 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ لاہور کے اسپتالوں میں نمونیا، چیسٹ اور وائرل انفیکشن کے سینکڑوں بچے زیر علاج ہیں۔ چلڈرن اسپتال میں 60 سے زائد بچے داخل ہیں۔ جناح سروسز جنرل اور گنگارم اسپتال میں متعدد بچے زیر علاج ہیں۔ عام مارکیٹ میں نمونیا ویکسین اور ادویات بھی دستیاب نہیں۔ محکمہ صحت پنجاب نے ہدایت کی ہے کہ والدین بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کا کورس ضرور مکمل کروائیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب کے اسپتالوں میں کلینکل شعبے کی بہتری کے لیے انقلابی فیصلہ۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ہدایات کے مطابق ڈاکٹرز کی پرائیویٹ پریکٹس پر پابندی ہوگی۔ اسپتالوں میں ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی ایسوسی ایشن ختم کی جائے۔ پروفیسرز کی ACR اب MS لکھیں گے، اور جسٹس شاہد کریم نے سیکرٹری ہیلتھ علی جان کو نوٹیفیکیشن جاری کر کے حاضر ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے مطابق ہائی کورٹ نے آرڈر میں واضح کیا ہے کہ میڈیکل انسٹیٹیوشن ایکٹ 2003 کی سیکشن 20 کے تحت پرائیویٹ پریکٹس پر لگنے والی پابندی پر عمل درآمد کیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ اسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ڈرپ کے ساتھ مل کر عمل درآمد کیا جائے۔ سرد موسم میں برائلر معمولی سا سستا ہو کر غریب کی پہنچ سے پھر بھی دور ہے۔ مرغی کا گوشت 7 روپے سستا، فی کلو قیمت 644 روپے ہو گئی ہے۔ زندہ برائلر کی قیمت میں بھی 4 روپے فی کلو کی کمی۔ زندہ برائلر ہول سیل 428، پرچون ریٹ 444 روپے کلو مقرر۔ فارمی انڈوں کی قیمت 416 روپے فی درجن برقرار ہے۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 12,360 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سرد موسم میں برائلر معمولی سستا ہو کر بھی غریب کی پہنچ سے دور ہے۔ مرغی کا گوشت 7 روپے سستا، فی کلو قیمت 644 روپے ہو گئی ہے۔ زندہ برائلر کی قیمت میں 4 روپے فی کلو کمی ہوئی ہے۔ اپڈیٹ کریں گے نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر ہمارے ساتھ ہیں۔ عبدالقادر بتائیے، نئی قیمتوں کا تعین کر لیا گیا ہے؟
जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नज़रनामे जारी किए गए हैं उसमें ब्रायलर की कीमत में कमी की गई है और इस कमी की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि ओपन मार्केट में ब्रायलर की खरीदारी जो है वो शहरियों की जानिब से गैर मामूली तौर पर कम की गई है, जिसकी वजह से डिमांड में जो है वो वाज़ेह कमी हुई है और 7 रुपये फी किलो तक रिलीफ दिया गया। मुर्गी का गोश्त जो गुज़िश्ता रोज 651 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया था, 7 रुपये कमी के बाद 644 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 4 रुपये तक कमी हुई है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 428, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है। अंडों की कीमतों में ताहम कोई जो है कमी बेशी नहीं। अंडे की कीमतें सरकारी रेलिसों में 416 रुपये की दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 12,360 रुपये की मुकर्रर की गई है, जबकि परचून बाजारों में शहरियों को फी अंडा जो है वो 40 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि अंडों की कीमतें जो है वो इंतजामिया के कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं और ब्रायलर की कीमतें मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं, जिसकी वजह से ब्रायलर अब भी 650 रुपये फी किलो की सतह पर मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। ठीक है, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पेट्रोल और डीजल की कम होती कीमतें फिर टॉप गियर में जाने लगीं। 1 फरवरी से पेट्रोल और डीजल 5 से 7 रुपये फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान है। अहवाल इस रिपोर्ट में। पेट्रोल और डीजल की कम होती कीमतें फिर टॉप गियर में जाने लगीं। ज़राए के मुताबिक आलमी मंडियों में तेल की कीमतें बढ़ने से 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। पेट्रोल 7 रुपये और डीजल 5 रुपये फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान है। ओगरा और वजारत पेट्रोलियम ने कीमतों से मुतल्लिक वर्किंग शुरू कर दी है। गुज़िश्ता 12 रोज़ में आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में $4.37 फी बैरल इजाफा हुआ है, जिससे आलमी मंडियों में तेल की कीमत $77.78 से बढ़कर $82.15 फी बैरल हो गई है। ज़राए वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक ओगरा 31 जनवरी तक कीमतों से मुतल्लिक सिफारिशात भिजवाएगा, जिसके बाद निगरान वज़ीर आज़म इस पर हतमी फैसला करेंगे। हुकूमत और इंतज़ामिया महंगाई माफिया को लगाम डालने में नाकाम। लहसुन 720, अदरक 650, प्याज 220, टमाटर 160, सब्ज मिर्च 170 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त, मटर 300, शिमला मिर्च 290, मेथी 220 और बैंगन गोभी 150, आलू 70 रुपये किलो बिकने लगे। अनार बदाना 950, खजूर ईरानी 600, सेब 440, अमरूद 180 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगे हैं। अहवाल बताएंगे अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। अब्दुल कादिर बताइए। सरकारी रिलीज जारी की गई, उसमें 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियां भी अवामी कुव्वत खरीद से बदस्तूर बाहर है। प्याज मार्केट में 220 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 5 रुपये महंगा करके 120 रुपये सरकारी रिलीज में मुकर्रर किया गया है, लेकिन मार्केट में यही टमाटर 160 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन 510 के बरस 460 के बरस 650 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। नींबू 5 रुपये महंगा करके 65 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 90 रुपये फी किलो तक लीमू की फरोख्त की जा रही है। और इसी तरह दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया, उसमें साग 3 रुपये महंगा करके 53 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट 80 किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फूल गोभी 5 रुपये महंगी करके 110 रुपये मुकर्रर की गई है, मार्केट में 150 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च 5 रुपये महंगी करके 230 रुपये सरकारी रिलीज में, लेकिन मार्केट में 290 से 300 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह फल जो है वो भी सरकारी नजरनामों के बरस महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। सेब 300 के बरस 440 रुपये, केला दर्जा हो 50 के बरस 200 रुपये दर्जन तक और दर्जा दोम का केला 100 के बरस 140 रुपये दर्जन फरोख्त किया जा रहा है। जी ठीक है, अब्दुल कादिर आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पोश इलाकों में तरक्याती काम हुकूमत की अवलीन तरजीह, जबकि गुंजान आबाद और पसमानदा इलाके नज़रअंदाज। बागबानपुरा के इलाके भोगीवाल रोड और शेलर चौक टूट फूट का शिकार है। जगह जगह कीचड़ और गड़े पड़ चुके हैं। N119 के हल्के के लोग अवामी नुमाइंदों से मायूस नजर आते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। निगरान वज़ीर आला की तरजीहात में पोश इलाके और शाहराहें शामिल। लाहौर के पसमानदा और गुंजान आबाद इलाके यकसर नजरअंदाज। बागबानपुरा के इलाके शैलर चौक भोगीवाल रोड समेत मुल्हका इलाकों की अबतर सूरत हाल। सड़क नाम की कोई शय नहीं, जगह जगह गंदगी और गड्ढे। लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हल्के के अहम इलाकों में सिंहपुरा, मुस्लिम पार्क, चाइना स्कीम, भोगीवाल, माधुलाल, बागबानपुरा शामिल। बंद रोड, शादीपुरा, मोमिनपुरा, दारोगा वाला और दीगर इलाकों की भी यही सूरत हाल है। N119 में आने वाले इस इलाका के मकीनों का कहना है कि कई MNA और MPA आए और चले गए, लेकिन ये सड़क नहीं बन सकी। 2 साल कबल मुरम्मती काम शुरू हुआ, लेकिन ठेकेदार भाग गया। ये रोड
तकरीबन कोई 15 साल हो गए इस तरह ये रोड, काफ़ी फैमिलियाँ गिरती हैं। इधर सुबह भी एक फैमिली गिरी है, बारिश आती है तो इधर कोई आता ही नहीं। तो ये काफ़ी MNA MPA गए लेकिन ये रोड नहीं बना। इस इलाके की भी बहुत बुरी सूरत हाल है, सड़क की तो काफ़ी बुरी आपको नज़र ही आ रहा है। काफ़ी MLA जो भी आता है वादा करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ का काम कोई भी नहीं हो रहा। ये हाल काम कोई नहीं है, ये चलिए पैसे ले लेते हैं, सड़कें बनवाता कोई नहीं है। ये देखें कितना कूड़ा कचरा, जब अब बारिश होती है लोग गिरते हैं इधर। ये गली है हमारी साथ ही जी, कोई भी नहीं आता वोट लेने के लिए, सब आते हैं उसके बाद कोई भी नहीं आता इधर। NA 119 में नून लीग से मरियम नवाज, PTI से शहजाद फारूक, पीपल्स पार्टी से इफ्तिखार शाहिद और जमात इस्लामी से चौधरी जुल्फकार अली मद्दे मुकाबिल हैं। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,20,829 है, जिनमें 2,77,172 मर्द वोटर्स और 2,43,657 खवातीन वोटर्स हैं। वाज़ेह रहे कि NA 119 से हमेशा मुस्लिम लीग नून जीतती आई है और 2018 में मुस्लिम लीग नून के अली परवेज मलिक 1,13,273 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ के टिकट पर जमशेद इकबाल 66,861 वोट हासिल कर सके। खबर यह है कि कई हुकूमतें आईं और कई गईं, मगर हल्का NA 118 में हालात न बदल सके। आवाम आलूदा पानी पीने पर मजबूर, इलाके से गैस गायब है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। आवाम कहते हैं सियासतदान वोट मांगने तो आ जाते हैं लेकिन हल्के में काम करने नहीं आते। रिपोर्ट करेंगे। क्या आम इंतखाबात हल्का NA 118 के हालात बदलेंगे? ये सवाल हल्के के हर वोटर की जुबान पर है। NA 118 में शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार, जबकि घरों में गैस आती ही नहीं। धोबीघाट के इलाके के अबतर हालात शहरी सियासतदानों के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं किसी ने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया, इस बार किसी सियासी पार्टी को वोट देने को दिल। हुकूमत नूं सोचना चाहिए, हुकूमत सोचती नहीं पई। हर किसी नूं अपने घर लगे हुए, ऐसे दे वाम कोई वोट नहीं किसी नूं पाएगी। वाम बहुत बाज़ेन हो गई है, वाम कोई लिहाज नहीं कर रही, कोई किसी का नहीं माफ़ी है। तो ऐसा किसी ने वोट नहीं जो पाना वाम ने। किसको वोट दें हम? कोई भी नहीं मसला कर रहा कोई भी। ये पंप लगे हुए हैं गैसों के, गैसों पंप के बगैर गैस नहीं आती, कोई भी नहीं आती। हम यही परेशान है। NA 118 के अहम इलाकों में चाहमीरा, धोबीघाट, मक्खनपुरा, सिंहपुरा, गुज्जरपुरा, घोड़े शाह और कोट ख्वाजा सहित शामिल हैं। बेशतर इलाकों की सूरत हाल धोबीघाट के इलाके से मुख्तलिफ नहीं। मकीनों को बुनियादी सहूलियात ही मुयस्सर नहीं। वोटर्स का कहना है कि कई हुकूमतें आईं मगर आवाम के हालात को न बदल सके। बिल भेजी जाते ने, ना सुई गैस, ना पानी, ना नमाज पढ़ ली, वजू कर ली, पानी बिल च कितों दईए? असीं बाबे वेले बह गए हुण औलादां दे सिर ते, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? देखो ये कोई मसला हल नहीं हो रहा, बिल्कुल पानी गंदा, पीन तो मजबूर हाँ, कपड़े धोन तो कोई मर जाए तो उन्हें पानी गुसल देने जोगा पानी नहीं है, साढ़े कोल वधू जोगा पानी नहीं है। हल्का NA 118 से मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज, PTI की आलिया हमजा, पीपल्स पार्टी के शाहिद अब्बास, जमात इस्लामी के चौधरी शौकत मैदान में हैं। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 3,71,715 है, जिनमें 2,12,728 मर्द जबकि 1,58,987 खवातीन वोटर्स हैं। 2018 के आम इंतखाबात में इस हल्के से नून लीग के हमजा शहबाज 1,46,306 वोट लेकर कामयाब हुए थे। लाहौर के हल्का NA 121 में इंतखाबी सरगर्मियों के रंग गहरे न हो सके। आवाम की बड़ी तादाद की इंतखाबात में अदम दिलचस्पी वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है। सीवरेज, पीने का आलूदा पानी और आलूदगी हल्के के बड़े मसाइल हैं। सुहेल कैसर की रिपोर्ट। ऐसा भी शायद तारीख में पहली बार ही हो रहा है कि इंतखाबात सरपरान पहुंचे हैं लेकिन इंतखाबी रंग बदस्तूर फीके ही नजर आ रहे हैं। सिर्फ शाहराहों और गली कूचों में आवेजा बैनर से मालूम पड़ता है कि इंतखाबात मुनक्किद होने जा रहे हैं, वरना कॉर्नर मीटिंग्स और जोड़ तोड़ का सिलसिला ना होने के बराबर ही दिखाई दे रहा है। इसकी वजह उन हालात को भी करार दिया जा सकता है जिन हालात में इंतखाबात होने जा रहे हैं। लोगों को हर बार सुकून है कि लोग इलेक्शन वाले पास जाएंगे, सुकून ही नहीं होता उन्होंने कितने जाना है, कोई नहीं जाना। वोट पा देंगे, वोट उन्होंने आके। प्याज 260 रुपए किलो है, टमाटर 160 रुपए किलो है, तो लोग इधर ध्यान देंगे या इलेक्शनों की तरफ देखेंगे? ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਰਹੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ नहीं आ रहा। लाहौर के हल्का NA 121 में भी ऐसी ही सूरत हाल नजर आ रही है, जहाँ कमोबेश 7,13,000 अफराद बसते हैं। इनमें से वोटर्स की तादाद 3.5 लाख है, जिनमें से 1,98,000 मर्द और 1,52,000 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। इस हल्के को बेशुमार मसाइल का सामना है। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ MPA ਕੋਈ MNA ਕੋਈ इंतजामिया इत्थे नहीं आती। इलेक्शन होंगे तो कोई मसला हल होगा, वरना ऐसे ही महंगाई आज और बढ़ा रहा है, कल कोई और बढ़ा रहा है। NA 121 से मजमूई तौर पर 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। इंतखाबात की तारीख करीब आने के बावजूद अवामी सतह पर नजर आने वाली सर्द मोहरी जाहिर कर रही है कि अवाम इन इंतखाबात में ज़्यादा दिलचस्पी लेते दिखाई नहीं दे रहे और इस रुझान को यकीनन खुशाइन करार नहीं दिया जा सकता। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। फिल वक्त इतना ही।